सोच रहा है तो मेक श्योर कि वो पहले ही करेगा, ठीक है। So I have put this on a record mode. Recording will be available on the app only. ठीक है, recording app. Okay. Okay. Let's start with the idea of social psychology. Because social psychology क्या है, ठीक है? So social psychology you can understand about it in a way that it's a bridge between sociology and psychology. It is a bridge between sociology and psychology. So सबसे पहले psychology क्या है and sociology क्या है? Okay. So technically psychology is a study of human beings, right? Their behavior, their cognitive processes, their experiences. So psychology is a study of individual or human beings, their experiences, behavior. Okay. And whereas sociology जो है, sociology is a study of group. ठीक है, तो group का behavior, society मतलब as a whole organization or as a whole number of people forming an organization, a culture, a group of people representing a caste, race and all these. तो जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी मैक्रो लेवल पे काम करता है, मैक्रो मतलब ग्रुप पे काम करता है, ठीक है, वेरी ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व टुगेदर। एंड जो साइकोलॉजी है वो माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, दैट इज योर study of individual being. Okay. And then comes the role of social psychology, which what it does is it basically connects the two fields. That is, it is a study of human beings, how human beings feel, thought, think, behave in the presence of group. ठीक है, तो social psychology क्या है? Study of individual in the presence of group settings. Okay. अक्सर होता है कि you might have seen that you must have gone to stage sometime, ठीक है, स्कूल में या कॉलेज में या ऐसा कहीं भी स्टेज पे चढ़े हो गए, कुछ बोलना होगा, तो वहां पे क्या हुआ, तुम्हारा हार्ट पैल्पिटेट किया होगा, ठीक है, डर लग रहा होगा, डर डर होगा कि सामने वाले क्या सोचेंगे, इवेल्युएट कैसे करेंगे, राइट। जब भी आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपको अनाउंस करना था या कुछ परफॉर्म करना था, तो क्या होता है ग्रुप के प्रेजेंस में हाउ वी बिहेव always differ as we behave individually. Okay, clear till now? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah, so social psychology is a study of individual behavior in group settings. Okay, going further, let me get through the text a bit. So social psychology is the study of how we feel, think about and behave towards the people around us and how our feelings, thoughts and behaviors are influenced by those people. This definition suggests the subject matter of social psychology is very broad and can be found in just about everything that we do every day. Okay, so more or less everything which we do on everyday basis might be a subject of social psychology. ठीक है, तो social psychology का scope इतना vast है, ठीक है, like being friendly or aggressive with someone, ठीक है, social psychology the benefits of having good relations and with other people and the cost of being lonely. ठीक है, then social psychology is what factors leads people to purchase one product than other, that is consumer behavior, how men and women behave differently in social settings, how juries work together to make important group decision. ठीक है, जैसे ग्रुप डिसीजन जब बनाना होता है, जैसे बहुत सारे जजेस होते हैं, उनको एक डिसीजन तक रीच करना है, so what will be the mechanism, what will be the way in which the different people will come together to one opinion, one decision. ठीक है, there is something called group think. अगर जब भी मेरे साथ क्लास में बैठना ना, तो एक कॉपी और एक पेन ले लेना, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि Yes, sir. लेके बैठे हैं। हाँ, जब कुछ नया कंटेंट होगा या जो तुम्हारे बुक में जनरली अवेलेबल नहीं होता है या थोड़ा सा सिलेबस के बाहर होता है लेकिन इंटरेस्ट, तो वो चीज हम तुमको खाली डिक्टेट या बता देंगे, तुमको नाम बता देंगे, उसको गूगल कर लेना बाद में क्लास के बाद या कभी भी, तो तुमको उसके बारे में थोड़ा और पता लगेगा, ठीक है। Okay, sir. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक का मतलब होता है कि व्हेन पीपल ऑफ सिमिलर मेंटालिटी, ठीक है, जब एक लीडर होता है और सिमिलर मेंटालिटी के पीपल रहते हैं, ठीक है, एंड बेसिकली ग्रुप थिंक शॉर्ट में बता दे रहे, इट इज मेकिंग बैड डिसीजन व्हेन यू आर इन अ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में
रहते हुए खराब डिसीजंस लेना। जब पूरा ग्रुप खराब डिसीजंस की तरफ बढ़ता है तो उसको वो बेसिकली ग्रुप थिंक के वजह से होता है। इट्स अ सोशल फिनोमिनन एंड वी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन। ठीक है, अक्सर ये होता है जब जैसे लीडर को कोई अपोज नहीं करना चाहता है या लीडर को कोई अपना पर्सपेक्टिव नहीं बताना चाहता है, क्योंकि अगर पर्सपेक्टिव बताएगा तो लीडर ये सोचेगा कि ये मेरे अगेंस्ट है। अगर ऐसा टाइप का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा टाइप का Yes, sir. ग्रुप का परसेप्शन है, लॉजिक है, तो इन दीज ग्रुप्स it is very likely that they are going to take wrong decisions on matter. ठीक है, so that is Yes, sir. thing. So again, how juries work together to make important group decision, what makes some people more likely to recycle and engage. So क्या एक पर्सन को मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाता है एंड अदर पर्सन को लेस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाता है, ठीक है. एंड देन देयर इज मेनी अदर व्हाई पीपल गो फॉर सुसाइड, एंड then there is why people don't help people, other people who are in danger or who are in need. ठीक है, there is a very क्लासिक स्टडी, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाई स्टैंडर इफेक्ट. लिख लो, बी वाई, बाई स्टैंडर इफेक्ट. ठीक है, तो बाई स्टैंडर इफेक्ट क्या था हम बता दे रहे कि देयर वाज अ वुमन नेम्ड किटी जेनोवेस. ठीक है, किटी जेनोवेस करके एक वुमन. Yes. बेसिकली क्या हुआ, शी वाज स्टैब्ड मेनी मेनी टाइम्स एंड देयर वर मेनी स्पेक्टेटर्स, ठीक है, हु वॉच्ड द होल Hmm. प्रोसेस बट नो वन केम अप टू हेल्प हर. ठीक है, she was bleeding and Yes. bleeding and she bleeded for many hours and she died, but no one came forward to help her. Now what was the factor, what was the reason behind such inhuman behavior of the crowd present? ठीक है, तो ये सारे सिचुएशंस को सोशल सेटिंग्स, सोशल साइकोलॉजी बेसिकली समझता है, पढ़ता है. ठीक है, then a field of social psychology is growing rapidly and is having an increasingly important influence on how we think about human behavior. तो हम लोग कैसे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं. ठीक है, ये सोशल साइकोलॉजी Hmm. इंटरेस्टिंग है. ठीक है, इफ यू टेक माय ओपिनियन, आई थिंक सोशल साइकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग Yes. पार्ट है. ठीक है, तो हाउ वी Yes. बिहेव, हाउ वी थिंक मोर अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, हम लोग को सोशल साइकोलॉजी के अंदर पता लगता है. ठीक है, वन ऑफ द की फैक्टर इज, एक की फैक्टर हम बता देते हैं. जैसे न्यूज़पेपर में जो एड का प्लेसमेंट होगा या वेबसाइट्स जो बनती हैं, हाउ पीपल Hmm. will react to those ads, how people will react to those websites. ठीक है, it's all the part of social psychology we can say, because ह्यूमन बिहेवियर समझ पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ह्यूमंस को क्या चीज अट्रैक्ट करेगा, हाउ यू शुड कीप योर एड, हाउ यू शुड कीप योर वेबसाइट, राइट. तो Yes, sir. these things comes in part of social psychology. Let begins with a short history. शॉर्ट हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करते हैं. दैट इज अ मॉडल. ठीक है, तो ये मॉडल है. दिस मॉडल वाज बेसिकली गिवन बाय कर्ट लुइन. ठीक है, कर्ट लुइन इज we can say is a very prominent figure when it comes to social psychology का अगर बात करें तो कर्ट लुइन बहुत prominent figure है. ठीक है, बहुत prominent figure, काफी इसका contribution है. एंड इसने एक बेसिक चीज बोला था, that behavior is, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हमने लिखा है. ठीक है, behavior Behavior equals of social situation and individual characteristics. individual Or we can characteristics. say, yeah, or we can say behavior is a function of person, the environment around you. ठीक है, तुम्हारा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस द इन्वायरमेंट अराउंड यू. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड. हाँ, Yes. एक कॉल आ रहा है, जस्ट होल्ड Okay, फॉर अ sir. सेकंड. Okay, sir. हेलो, हेलो, हाँ बोलो. हाँ, तो तुम्हारे सामने ही आ रहा है. तो पासवर्ड को मेल भेजा है.
अच्छा सुनो ना, अभी क्लास के बाद स्टार्ट करो। Hello. Yeah. So we were talking about that. Kurt Lewin said that behavior is a function of person and environment. ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा behavior हमारे ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन environment पे भी उतना ही डिपेंड करता है. ठीक है? करेक्ट? यस सर, यस ओके. तो आपने देखा होगा कि अगर एक स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, ठीक है, कि हॉट कंट्रीज में क्राइम ज्यादा होता है, अग्रेशन ज्यादा होता है, एंड में क्राइम कम होता है, अग्रेशन कम होता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट यू थिंक? हेलो. सर, इन्वायरमेंट की वजह से. राइट, एनवायरनमेंट की वजह से. सो एनवायरनमेंट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन हॉट कंट्रीज, राइट? So that's why aggression is more likely to happen. ठीक है, अगर थोड़ा सा टक्कर लग गया गाड़ी का, then गुस्सा हो जाएंगे लोग. ठीक है, they may become aggressive, violent and etc. But in cooler regions, since the environment is cooler, so we can say some टक्कर लगेगा, but not everyone may go into violence. ठीक है, environment का एक effect रहेगा वहाँ पे. ठीक है, कितना रहेगा यस सर, ये तो डिफर करता है, पर्सन पे डिपेंड, Yeah. पर्सन टू पर्सन. Yeah, यस सर. correct. So see, there is a very good diagram, very explicitly explained diagram. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, social cognition perception. देखो, individual characteristics ऊपर की तरफ है, नीचे है input from social situation. ठीक है, how a behavior is formed. तो हमारे जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो सोशल सिचुएशन में हम लोग हैं, उसके बेसिस पे हम लोग सोशल कॉग्निशन या सोशल परसेप्शन करेंगे. मतलब हम लोग अपने इन्वायरमेंट का मतलब निकालेंगे. ठीक है, उसको समझेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बेसिस पे अपने इन्वायरमेंट को इवैल्यूएट करते हैं एंड देन बिहेव करते हैं इन अ सर्टेन वे. ठीक है, ये जो सर्टेन वे में बिहेव करते हैं, दैट इज ओवर्ट्स सोशल बिहेवियर. उससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट फिर चेंज होता है, और वो चेंज इन एनवायरनमेंट को फिर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं एंड देन बिहेव करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल है. सपोज हम तुमको भेज दिए एक जूनियर सेक्शन को माइंड करने, छोटे बच्चों को माइंड करने, होते ही है ना स्कूल्स में. तो अभी तुम क्या करोगे, तुम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा क्या है कि सपोज यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ माइंडिंग, हाउ टू माइंड all kids. Okay, this is your individual characteristics. Now maybe you can be too cool tempered, this is also your individual characteristic. Now, what is the social situation when you go inside and you see all the children are hooligans? ठीक है, सब चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं. now you interpret, you make social cognition. Okay, this is my thing, and सामने तुम देखोगे इतना बड़ा situation challenge खड़ा हुआ है. Now you will evaluate the situation as a challenge. ठीक है, अगर challenge की तरह evaluate, you will go ahead and take some initiative. What you will do, you will try to say, okay, keep quiet guys, something like this, है ना, या फिर डस्टर वस्टर कुछ टेबल पे मारोगे या कुछ ऐसा करोगे, right? Now your overt social behavior, what will happen, there might be a change in, there might be two things. Either they won't pay attention to you, वो लोग अपना हल्ला गुल्ला चालू कर रहे हैं, तुमको ध्यान ही नहीं दिया. दूसरा चीज क्या हो सकता है कि वो लोग चुप हो गए. ठीक है, अगर वो लोग ध्यान नहीं दिए तो यू बिकम अवेयर दैट योर स्ट्रैटेजी वाज इनएफेक्टिव. करेक्ट? यस सर. तो तुम स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, है ना, सोशल कॉग्निशन फिर से होगा, यू विल अगेन इवैल्यूएट द सिचुएशन, यू विल चेंज द स्ट्रैटेजी एंड डिफरेंट ओवर्ट सोशल बिहेवियर. बट इफ यू थिंक, इफ यू सी दैट improve from but that okay, people are now quiet. Okay, kids are now quiet, you will then perceive that your minding was good. Okay, and you will continue to mind in that situation in that particular way because your behavior is effective, right? Yes sir. So this is how this model works. Okay. Okay. ना देखो, कर्ट लुइन के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं. ठीक है, तो कर्ट लुइन थोड़ा वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही वाज वेरी मच इन्वॉल्व, ठीक है, विद द जर्मन आर्मी, एंड he conducted many experiments in order to influence the general public. ठीक है, you know what happens is कि वॉर के टाइम में
फूड का बहुत ज्यादा स्केर्सिटी हो जाती है, राइट? स्कैरसिटी था। है ना? तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब तुम सपोज करो कि स्केर्सिटी हो गई है, तो देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द मीट विच वी डू नॉट ईट, है ना? पार्ट्स यस ऑफ द सर। मीट विच वी डू नॉट ईट जनरली, जैसे स्प्लीन हो गया है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स. Okay, so Kurt Lewin did a research of persuasion with along with the government, ठीक है, to influence the general public to not throw away the lesser eaten part of the meat and other fruits and vegetables, ठीक है, and actually go ahead and eat them so that they have the necessary nutrients with them, ठीक है. This was one of the Kurt Lewin का research, ठीक है. However, it is not written in your notes. I'm just giving you a background so that you understand कि Kurt Lewin ने ऐसा काम कैसे किया था, ठीक है. ओके सर। Lewin came to believe that person's perception of the world is influenced by what he or she has to do in that situation. He termed the combination of individual needs and social factors the psychological field in which the individual lives, ठीक है. तो ये क्या बोला, ये बोला कि हमारे जो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स, दैट इज इंडिविजुअल नीड्स एंड सिचुएशन फैक्टर्स, जो अभी हम ऊपर समझाए हैं, ठीक है, डायग्राम में, यस सर। है ना. तो इंडिविजुअल नीड्स एंड सोशल फैक्टर्स को कंबाइन फील्ड बनता है जिसमें हम लोग ऑपरेट करते हैं. Now, history of social psychology. तो I gave you a very basic model, ठीक है. अब आते हैं हिस्ट्री में कि how social psychology started, what was the very first research, ठीक है. देखो अगर हम लोग बेसिक सोशल साइकोलॉजी की बात करें जो आज हम, ठीक है, तो इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू नॉर्मन ट्रिपलेट. बट अगर हम लोग उससे भी पहले देयर आर ट्रेसेस ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक है. जैसे मिडिल ईस्ट में देयर वाज अ ये फिलोसोफर नोन एज अल फराबी, ओके. ये यस सर, अल-फराबी। हाँ, प्री रेनेसा पीरियड का टाइम का, ठीक है. तो देयर वाज अ सोशल देयर वाज अ फिलोसोफर नोन एज अल फराबी, ठीक है. तो ये अल फराबी क्या करता था, इसने अपना ही टॉक्ड अबाउट सोशल साइकोलॉजी दैट टाइम, उसके राइटिंग्स में मिलेगा. बट जनरली सोशल साइकोलॉजी जो एज अ फील्ड जो स्टार्ट हुआ, उसको अगर वहां तक नहीं करते, कई लोग वो सब चीज को नहीं मानते हैं और कई लोग उसको नहीं कोट करते हैं, ठीक है. इंडिया में भी देखेंगे तो इंडिया में भी काफी टेक्स्ट में, ठीक है, आपको मिलेंगे. जैसे इंडिया में जो इतने टेक्स्ट हैं, वेद है, ठीक है, पुराने जितने हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, तो उनमें भी सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात है ना. तो अगेन वो सब सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है, लेकिन पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. लेकिन जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव का है, ठीक है, दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1900s विद द अप्रोच ऑफ नॉर्मन ट्रिपलेट, ठीक है. ये देखो ट्रिपलेट देख रहे हो, दिस इज नॉर्मन ट्रिपलेट, ठीक है. तो 1988 में नॉर्मन ट्रिपलेट ने क्या किया, एक स्टडी की, ठीक है. he did a research. What research? He saw that, observed that जो साइक्लिस्ट होते हैं, the cyclist, ठीक है, performed better when they were performing in presence of other cyclists. कंपटीशन जब होता है तब साइक्लिस्ट ज्यादा तेज साइकिल करते हैं एज कम्पेयर परफॉर्मिंग अलोन, ठीक है. तो साइक्लिस्ट का परफॉर्मेंस अलोन एंड इन प्रेजेंस ऑफ अदर साइक्लिस्ट डिफर्स. Generally, cyclists perform better in presence of other cyclists. Now, he was very good. He was very, we can say, shocked by this fact, and he decided to learn more about this fact. So he conducted many experiments. ठीक है. कौन? नॉर्मन ट्रिपलेट ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उसने पाया कि there is something called social facilitation. Then he gave the concept of social facilitation. Okay. Am I clear till now? Social facilitation. Social facilitation, ठीक है, नॉर्मल ट्रिपलेट. ठीक है. Should I move ahead? Social facilitation. Yes. Now, social facilitation में क्या होता है? It is like कि when
your whatever you are doing, the activity which you are well rehearsed, when the activity which you are doing is well rehearsed, then in that case what will happen is that if you do that activity in presence of a public audience or co-actors, your performance is going to increase. ठीक है? Yes, sir. एंड इसका एक उल्टा पार्ट भी होता है, रिवर्स फिनोमेना, जिसको बोलते हैं सोशल इनहिबिशन. Social inhibition. Right. That is, if your activity is not such well rehearsed, अगर इतना अच्छा well rehearsed नहीं है, you are not very good at that activity, and you have, suppose you have just started learning guitar, and I ask you after 2 months or 1 month, okay, okay, Shamshad, do one thing, go to college stage and perform a song. Yeah. देन एक महीने की प्रैक्टिस में एक सॉन्ग जाके परफॉर्म करना वो भी पब्लिक के सामने विल बी क्वाइट चैलेंजिंग, एंड विच माइट लीड टू, इफ यू आर नॉट गुड गिटारिस्ट बाय 1 मंथ, देन इट माइट लीड टू योर डिटोरिएशन ऑफ द परफॉर्मेंस. तुम्हारे एक्चुअल परफॉर्मेंस से भी खराब परफॉर्म करोगे तुम, और इसको बोलते हैं सोशल इनहिबिशन. Inhibition. के प्रेजेंस में या ऑडियंस के प्रेजेंस में आपका परफॉर्मेंस नॉर्मल से भी खराब हो जाए. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this was the very first thing which came up in social psychology, what Norman Triplett का. Then उसके बाद what was seen that there was a book which was published, the first social psychology book, textbook, which was published in 1908. 1908 में मैकडूगल ने ये पब्लिश की किताब. ठीक है, मैकडूगल. ठीक है. एंड ये किताब में बेसिकली देयर वर मेनी चैप्टर्स, बट द चैप्टर्स डू नॉट रिप्रेजेंट, ठीक है, दोज थिंग्स विच एग्जिस्ट टुडे. मतलब उसकी जो मैकडूगल की जो किताब थी, उसके जो चैप्टर्स थे, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम what chapters we have today in social psychology textbook. ठीक है, they were very different, and so McDougall talked about different needs and drives. ठीक है, in his book. So let me show you once कि उसकी book कैसी है, so you get an idea. Just hold on. यहाँ लिखा है English published book which included chapters on emotions, sentiments, morality, character, religion. ठीक है, which is quite different from what is incorporated in the field today, right? Can you see the screen? Hello. Yes, sir. Okay, ठीक है. So you can see that the initial approach was different, and धीरे धीरे social psychology का topic धीरे धीरे बदलता गया. ठीक है, यहाँ पे there are some journals which started, journals जिसमें publish हुआ अलग अलग work. सबसे पहला जर्नल था 1950s में, जर्नल ऑफ एबनॉर्मल एंड सोशल साइकोलॉजी. देन इट केम 1963 में जर्नल ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है, 65 में जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी. तो यू कैन यूज दिस आर्टिकल टू, हम इसको भी अपलोड कर देंगे. तो ये आर्टिकल और जो हम नोट्स दिए अगर दोनों साथ मिला के पढ़ोगे तो और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. ठीक है, थैंक यू. ठीक है. सो these were the some of the things. ठीक है, अच्छा, these are some prominent figures. Alport, ठीक है, then and contribution. देखो Alport ने social facilitation के बारे में बात किया, जो अभी समझा रहे थे. तो नॉर्मन ट्रिपलेट ने वो रिसर्च करके बता दिया था, देन Alport ने उसी रिसर्च को फर्दर करके सोशल फैसिलिटेशन के बारे में फर्दर समझाया था.
देन बंडूरा Yes, sir. लर्निंग थ्योरी, ठीक है, बंडूरा तुमने पढ़ा ही होगा, इसने है ना लर्निंग, हाँ, social cognitive theory. हाँ. देन देयर इज फेस्टिंगर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ये तुमने नहीं पढ़ा होगा ये दिस. No, sir. हाँ. देन हेनरी टाचफेल ने सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, इन ग्रुप आउट ग्रुप का फिनोमिनन बताया था माइनॉरिटी का, ठीक है. Bernier Yes. attribution theory, Milgram shock experiment. We are going to study all these. Philip Zimbardo prison experiment. ठीक है. So we will study Okay, all sir. these. I will also show you some of the video clips जो हम तुमको भेज मतलब अपलोड करेंगे, लिंक दे देंगे, ठीक है. तो तुम वो Okay. वीडियो क्लिप्स भी देख लेना, जैसे ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स का वीडियो क्लिप्स अवेलेबल है. Okay. Okay, sir. So let's go back to the text where we were. Okay. Yeah. So McDougall came up with his book in 1940s and social psychologists Kurt Lewin and Leon Festinger redefined the experimental approach to study behavior, creating social psychology a rigorous scientific discipline. ठीक है. तो देखो एक डिसिप्लिन, कोई भी साइकोलॉजी, कोई भी फील्ड एक डिसिप्लिन तब बनता है जब उसका वे, द विच in which we are trying to find knowledge about that discipline. ठीक है. अगर हम लोग जैसे the way in which we are conducting researches, the way in which we are trying to find knowledge about some discipline, some field, ठीक है. अगर ये standardized होगा, अगर ये rigorous होगा, अगर ये scientific होगा, biasness free होगा, then only we say that the discipline is a good discipline and a developed discipline. उसकी जो knowledge है वो सही है, ठीक है, रैंडम नॉलेज नहीं है उसमें. करेक्ट. तो लुइन Yes. ने, कर्ट लुइन ने एंड लियोन फेस्टिंगर ने जो अप्रोच होता है, जो स्टडी का अप्रोच होता है, इसमें काफी रिफाइनमेंट किया, ठीक है. सो देखो अर्लियर क्या होते थे, अर्लियर ऑब्जर्वेशन मेथड यूज होता था. क्या होता था सोशल साइकोलॉजी में, पीपल यूज टू ऑब्जर्व एंड देन कम टू कंक्लूजंस. लेटर ऑन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यूज हुआ, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग करके देखे गए, एंड उसके बाद मतलब कंट्रोल्ड कंडीशंस में, एंड उसके बाद आप रिजल्ट्स पे आए. तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इज वे लॉट बेटर एज कंपेयर एकदम. ऑब्जर्वेशन. हाँ बोलो. हेलो. No, sir. कुछ. अच्छा. देन लुईस is sometime known as the father of social psychology. कर्ट लुईस को father of social psychology भी कभी कभी बोलते हैं, due to his enormous contributions. ठीक है. 1954 में फेस्टिंगर एडिटेड द इन्फ्लुएंशियल बुक, अपना एक बुक लेके आया, दैट इज रिसर्च मेथड Research method behavioral and sciences, behavioral science. in which he and other social psychologists stress the need to measure variables and to use laboratory experiments to systematically test research hypothesis. ठीक है. तो इसने अपने बुक में, फेस्टिंगर ने रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंसेस में, Festinger talked about different types of experiments, labs and experiments which can be used to check the hypothesis. Okay, check the hypothesis which we have about social behavior. What is a hypothesis? Do you know? Assumption. Assumptions, right? Check our assumptions, tentative solutions. Okay. Moving ahead. Social psychology was energized by researchers who attempted understand how German dictator Adolf Hitler would have produced such extreme obedience and horrendous behavior. So ये बहुत इंटरेस्टिंग है. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में तुमको याद होगा एडोल्फ हिटलर था, ठीक है, जो क्या करता था, करता था ज्यूस को पकड़ पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में डाल दे रहा था, उन लोग को मारता था, है ना. He was very rigorous, he was very brutal with Jews. He was not alone who was doing all this. Rather, वो अकेले ये नहीं कर रहा था. Rather, he had a huge army, and the army was composed of few trained people, and rest of the army was composed of new recruits. ठीक है, new recruits who were earlier farmers or people belonging to different types of occupation. ठीक है. तो अलग अलग ऑक्यूपेशन आए, अलग अलग छोटे फार्मर के बच्चे या यंग फार्मर्स, उन लोग अभी न्यू रिक्रूट सोल्जर्स बने थे, एंड उन लोग क्या कर रहे थे, दे वर brutally killing Jews, they were brutally treating Jews. Now just and try to understand a person who, normal person, ठीक है, जो कि नॉर्मल में है, जो डेली किलिंग्स एंड ये सब नहीं देखता है ना करता है, वो अचानक से एक पर्सन, एक
लीडर के बात पे हाउ कैन ही or she be so brutal that he or she is going to kill the Jews and Someone. mistreat Jews, right? So Yes, sir. this was something जो social psychologist को काफी ज्यादा काफी ज्यादा उनको सोचने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड कर दिया, राइट? सो दे कंडक्टेड experiments and the experiments were on social norms, the experiment were on obedience to authority, ठीक है? And then there was prison experiment. ये important experiment है, I will tell you about each one of them, ठीक है? तो experiment Okay. studies on conformity by मुजफ्फर शरीफ, ठीक है? तो पहला जो एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द फ्यू एक्सपेरिमेंट था मुजफ्फर शरीफ का, स्टडीज ऑन कॉन्फॉर्मिटी. देन साइकोलॉजी ऑफ नॉर्म्स, जो social नॉर्म्स law. के बारे में, हाउ सोशल नॉर्म्स डेवलप, ठीक है? एंड नॉर्म्स बाय सोलोमन एश, ये जो सोलोमन एश है ये, ठीक है? देयर वाज ओबीडियंस टू अथॉरिटी, ठीक है? बाय स्टैनले मिलीग्राम. स्टैनले मिलीग्राम देखो यहाँ लिखा हुआ है, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, स्टैनले मिलीग्राम, ठीक है? And then there was showed importance, ठीक है? And there was Philip Zimbardo का prison experiment. So these were few of the very interesting experiments which were which resulted post World War के बाद में. Now let's just understand ये सारे experiments हुए क्या इसमें, ठीक है? आगे आपको ये फिर रिवीजन में मिलेगा, लेकिन हम तो अभी से हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं. देखो हमने ये जो नोट्स बनाया है, ठीक है, हम पे बनाए हैं जिससे आप लिखें तो एग्जैक्ट आंसर्स बने. ओके, यस सर. मतलब सब पॉइंट्स आ जाए एंड आपको मतलब ज्यादा नहीं करना पड़े. ये नोट्स इस पर्सपेक्टिव से बने हुए हैं, तो इसीलिए हमने इसमें सब कुछ नहीं इंक्लूड किया है, ठीक है? और जब हम पढ़ाते हैं तो उसके बाद हम जो भी पॉइंटर्स रहते हैं वो पॉइंट्स को डिटेल में बता देते हैं अलग से. ओके सर. Tell you about the different experiments which was conducted post this, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं मिलीग्राम्स का शॉक स्टडी, दैट इज स्टैनले मिलीग्राम का ओबीडियंस टू अथॉरिटी एक्सपेरिमेंट, ठीक है? नाउ देखो इसमें हुआ क्या, इसमें डायग्राम होगा, ठीक है? तो इस टाइप की मशीन थी है, ठीक है? What was the setting was a controlled experiments, ठीक है? Which included 40 male participants जिनकी basically 20 से 50 years of age थी, ठीक है? Yes sir. Now and they were paid about $4.5 for being the participant, ठीक है? Now Yes sir. the experiment was कि ये यहाँ पे तुमको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एक स्टूडेंट हुआ करता था, एक एक्सपेरिमेंटर. ओके, देयर वर 3 पीपल इन्वॉल्वड इन द एक्सपेरिमेंट. एक स्टूडेंट था, एक टीचर था, एक एक्सपेरिमेंटर था. नाउ व्हाट वाज एक्चुअली जो स्टूडेंट था, द स्टूडेंट वाज एक्टर एंड वाज अ काउंटरफीट मतलब एक्सपेरिमेंटर से मिला हुआ था, ठीक है? सर आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है, समझ रही हैं? सर आवाज बहुत कट रहा है, समझ रही हैं? आवाज कट रहा है, ओके. अभी भी कट रहा है? हेलो, थोड़ा थोड़ा सा. थोड़ा कट रहा है, थोड़ा सर. ओके. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू स्पीक स्लो, ठीक है? सो Okay. there was experimenter, there was teacher and there was student, ठीक है? The teacher, which was the Yes participant, sir. was told to give some list of words to the student, ठीक है? एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स स्टूडेंट को देने, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को देने जो कि स्टूडेंट को लर्न करना है, एंड जब भी वो स्टूडेंट गलती करेगा तो टीचर क्या करेगा, शॉक देगा, ठीक है? टीचर करेगा शॉक देगा. एंड शॉक there were 30 switches for the shock. There were 30 switches and it ranged from 15 volt to 450 volt. To 450. हाँ, 15 वोल्ट से 750 वोल्ट, ठीक है? तो यहाँ पे देखो this instrument look like this, ठीक है? Now obviously for the sake of experiment you can
शॉक एनीवन, राइट? आप किसी को शॉक तो नहीं दे सकते एक्सपेरिमेंट के लिए, लोग 450 का शॉक खाते है ना। हाँ, तो इसीलिए जो स्टूडेंट था दैट वाज अ एक्टर, ठीक है। तो उसको एक्चुअली शॉक लगता नहीं था, लेकिन वो एक्टिंग करता था कि उसको शॉक लग रहा है, ओके। लेकिन टीचर यस, था, पार्टिसिपेंट को ये बात नहीं पता लगता था कि उसको शॉक नहीं लग रहा, उसको लगता, पार्टिसिपेंट को लगता था कि वो सच में शॉक दे रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड यस, कि ईच टाइम द स्टूडेंट मेड मिस्टेक्स, ठीक है, द टीचर्स पार्टिसिपेंट गेव शॉक, ठीक है। एंड टू दी सरप्राइज, अगर कभी कभी ये भी होता था कि टीचर को नहीं समझ में आता था शॉक देना, उसको बोलता था कि नहीं हम नहीं शॉक देंगे, ठीक है। सो इन दैट केस जो एक्सपेरिमेंटर होता था वो ये चीज बोलता था, क्या बोलता था? बोलता था प्लीज कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंट द रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू, है ना। रिक्वायर यू टू कंटिन्यू। ये कुछ लाइन, ये 3-4 लाइन बोलता था, ठीक है। अगर उसको शॉक देने में दिक्कत होती थी, मतलब थोड़ा होता है ना, एक्सपेरिमेंटर को खराब लगता था। हाँ, So it was seen that the result was wonderful, we can say, because 65% of the participants continued to the highest volt. ठीक है, 65% of the participants, 5% of the teachers gave shocks up to 450 volt, which was severely dangerous. And वहाँ लिखा हुआ था, हाँ, and all the participants continued till 300 volt. 300 वोल्ट तक तो 100% लोगों ने 300 वोल्ट तक का झटका दिया, करंट लगाया, ठीक है। Now just see that in presence of experimenter, how the of a normal person was a participant, है ना, how the person participant can give shock to other person, ठीक है, such severe shocks to other person just due to the presence of an authority, that is experimenter, and just on his request, ठीक है। This showed that अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हुआ क्यों ऐसा हम बता रहे, this happened because it was seen that if the person feels that I'm not responsible for what is going on or what I'm doing, ठीक है, if I'm killing someone, I'm not responsible for something, जैसे सोल्जर किसी को मार दिया, ठीक है, if you okay, I'm not responsible for this, my country needed this, my country needed me to kill this person, राइट। सो उस सोल्जर को गिल्ट नहीं होगा, यस सर, ठीक है, गिल्ट नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर वो करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू द और शी इज गोइंग टू द एक्सट्रीम्स। दिस वाज द बेसिकली रिजल्ट ऑफ द मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट, एंड यहाँ कंक्लूजन है, ठीक है। ये देयर वाज मेनी वेरिएशन, ठीक है, इसको और रीड कर सकते हो तो और डिटेल में जाने के लिए, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि जरूर करना एक बार, क्योंकि काफी डिटेल है, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ाते, अगर एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे होते तो बताते, ठीक है। ओके, then this was obedience to authority, then there were other thing like मुजफ्फर शरीफ ने जो किया था, ठीक है। तो लेट मी शो यू शरीफ का काम। अच्छा, ऐश यहाँ पे, ऐश पहले बता देते हैं, ठीक है। तो सोलोमन ऐश, इसने भी कॉन्फॉर्मिटी पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो व्हाट ही डिड वाज, ये डायग्राम समझा रहा है कि क्या किया था। तो देयर वर 3 लाइंस A, B and C, ओके, देयर वर 3 लाइंस A, B and C, and it is very easily seen that इसमें से सबसे लंबी लाइन क्या है, A है, या सबसे छोटी लाइन क्या है, C है ना। So there were 50 students, participants basically, ठीक है। एंड इस बोला गया दैट इन यूएसए इन लोग को बोला गया कि देयर इज अ विजन टेस्ट व्हिच इज गोइंग ऑन, एक विजन टेस्ट किया जा रहा है। इट वाज एंड दे वर कार्ड्स, ठीक है, ABC, एक कार्ड में ABC बना था, एक कार्ड में टारगेट लाइन बना था, ठीक है। नाउ एंड दैट कि ये जो टारगेट लाइन है
it is similar to which line in the card? तो आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? सर सी। सी करेक्ट, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है, बहुत आसान आंसर, मोस्ट पीपल राइट होना Yes, चाहिए, है ना? नाउ द वंडर वाज कि इसने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, उस ग्रुप में सारे लोगों को पार्टिसिपेट कॉन्फिडेंस बना लिया, ठीक है, कॉन्फिडेंस बना लिया मतलब अपने साथ मिला लिया। फॉर एग्जांपल करो 20 लोग का ग्रुप है, तो 20 लोग में 19 लोग को अपने साथ मिला लिया, एंड एक जो नया पर्सन आता था वो वही एक्चुअली पार्टिसिपेंट होता था, रियल पार्टिसिपेंट, बाकी सारे पार्टिसिपेंट कॉन्फिडरेट्स होते थे, फेक होते थे, ओके। अब जब ये क्वेश्चन सबके सामने रखा जाता था एक साथ, तो बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स गलत आंसर देते थे, ठीक है, जैसे एवरीवन विल yes sir, द टारगेट लाइन रिप्रेजेंट्स बी और ए, ठीक है। नाउ होता क्या था, yes, ड्यू टू दिस देयर वाज अ प्रेशर ऑन द रियल पार्टिसिपेंट टू कंफर्म टू द ग्रुप। उसको लगता था यार हम कहीं गलत तो नहीं है, बट द आंसर वाज क्लियर, आंसर क्लियर है, कोई yes sir, एम्बिग्युइटी नहीं है सिचुएशन में, आंसर आप इजीली देख सकते हैं, लेकिन तब भी उसको शक होता था अपने ऊपर पे, अपने एबिलिटी पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वाज सेइंग द अदर वे अराउंड। सो it was seen that many of the people, most of the people we can say, ठीक है, conformed or they gave the answer wrong as per the other participants, ठीक है। So over 12 clinical trials about 75% people conformed, ठीक है, कितने लोग conform किए? 75%, मतलब अगर 10 लोगों पे 10 नहीं 100 लोगों पे अगर रिसर्च हुई तो उसमें से 75 people went along with the group and said the wrong answer and the rest 25 yes, said the correct answer, were conformed. There were even 1% of the people who gave the wrong answers, ऐसे भी, ठीक है। So we can see that इसमें हम लोग को ये दिख रहा है, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो, हाँ रमशा, वालेकुम अस्सलाम। कनेक्ट करना होगा तुमको, तुम्हारा नंबर हमने तुमको भेज दिया ना उसका, हाँ, तो उसको कनेक्ट कर लेना, उसको आईडी पासवर्ड दे देना, उसको 15 मिनट पहले बोल देना, रिमाइंडर दे देना कि इंग्लिश टीचर फ्रॉम करियर 360, ठीक है। सो वी हैव अ डेमो क्लास टुडे एट 4, दिस वाज अ रिमाइंडर कॉल, ठीक है, अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर देना बस, ठीक है, हाँ ठीक है। हेलो, yes sir, yeah, so where were we? Yeah, so basically most of the people conformed and there were very few who didn't conform, okay? So this was the study by Solomon Ash on conformity, ठीक है। मुजफ्फर शरीफ ने confirmed, किया था सिमिलर रिसर्च किया था, बट उसमें डिफरेंस ये था, मुजफ्फर शरीफ की जो रिसर्च थी उसमें आंसर वाज नॉट सो ऑब्वियस, ठीक है, आंसर बहुत इजी नहीं था, आंसर करना थोड़ा उसमें एक्चुअली टफ था, so that's why it was again done by Solomon Ash, ठीक है, where the answer was very easy and there was no point of confusion, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम confuse हो गए थे, ठीक है। then coming to Zimbardo, yes sir, फिलिप जिम्बार्डो, तो फिलिप जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड प्रिजन स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, एंड दिस इज अ मूवी, दिस इज आल्सो अ मूवी जो आप देख सकते हैं डाउनलोड करके, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। yes, In this experiment what Zimbardo did was he he basically we can say hired for some college, yes ठीक है, sir, जो कॉलेज स्टूडेंट्स, वेकेशंस होते हैं ना कॉलेजेस में, फॉरेन के वेकेशंस होते हैं विंटर के, ठीक है, क्योंकि वो ठंडा होता है ना ज्यादा, तो some of the college students, ठीक है, for internship, and what he did, he asked them there is an experiment which will be done and whether they want to be the part of the experiment or not, ठीक है, paying a very good amount of money, so many of the participants agreed, ठीक है। So what happened, yes, he divided the participants in
एक ग्रुप को उसने वार्डनर बना दिया, या वी कैन से पुलिस बना दिया, पुलिस नहीं वार्डनर बोलेंगे, ठीक है, एंड दूसरे प्रिजनर्स बना दिया, ठीक है। तो एक ग्रुप को क्या बना दिया, प्रिजनर बना दिया, एंड एक ग्रुप को वार्डन, ठीक है, वार्डन, जो बेसिकली Okay. प्रिजन गार्ड्स बना दिया, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड, the prison guards were, everyone was given, prison guards were given the uniform, the prisoners were given the uniform, and university के ground floor में, okay, it was converted, मतलब जो basement होता है, it was converted into a cell like structure, ठीक है, prison की तरह यूनिवर्सिटी का ग्राउंड फ्लोर को बना दिया गया। Now everyone was blindfolded, and they were uh, they were moved, and they came back into the university, ठीक है। उनको ऐसा दिखाया गया कि उनको कहीं शिफ्ट किया जा रहा है, एक्चुअली कहीं शिफ्ट नहीं किया गया था, उनको यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में रखा गया था, ठीक है। लेकिन Yes, सबको sir. ब्लाइंड फोल्ड करके ऐसा दिखाया गया कि आर गोइंग समवेयर, प्रिजनर्स को लग रहा था कि उन लोग को कहीं ले जाया जा रहा है, कोई जेल में। तो उन लोग को ले जाकर फिर उन लोग क्या किया, उन लोग को वो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में जेल बनाया गया था उसमें डाल दिया गया, ठीक है। नाउ now initially it was very good, fine, ठीक है, because everyone was thinking we are a part of experiment, and 2-3 हफ्ता चलेगा, and then we'll go, है ना, and we'll get good of money for it, ठीक है। but धीरे धीरे it was seen that the situation worsened, ठीक है, situation खराब होने लगी। क्या होने लगा, some of the prisoners started feeling कि actually उनको जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। Yes, sir. फिर जो गार्ड्स थे, गार्ड्स बिकेम थोड़ा वायलेंट, ठीक है, बिकॉज गार्ड्स वर गिवन द वर्क ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द प्रिजन, ठीक है। सो दे बिकेम, ऑल्दो दे वर नॉट अलाउड टू हिट डायरेक्टली, ठीक है, उनको डायरेक्टली हिट नहीं थी किसी भी पार्टिसिपेंट को, ठीक है। लेकिन उन लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस कराते थे, मतलब आधी रात को उठा देना, ठीक है, आधी रात को उठा के फिर पुशअप्स कराते थे, ठीक है। उन लोग को क्लोथ उन लोग के हटवा देते थे, ठीक है, उनसे गद्दा ले लेते थे, ठीक है, एंड शोर करते थे। तो ऐसे करके बहुत सारा उन लोग टॉर्चर करने लगे गार्ड्स, ठीक है। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोग को लगने लगा, प्रिजनर्स को लगने लगा कि दे आर एक्चुअली इन द प्रिजन एंड दे आर नॉट गोइंग टू गो, ठीक है, गो। So many of the prisoners started acting as they are not well, ठीक है, उनका पेट में बहुत दर्द है, they are going like this, ठीक है, but at any cost they were not released, ठीक है, ये चीज पकड़ा जाती थी and they were not released, and then there was isolation, जो prisoner ज्यादा परेशान करता था वो आइसोलेशन में डाल दिया जाता था, ठीक है। So it turned into more or less a real prison, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द फाइट, ठीक है, यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं, इट वाज मतलब देखने लायक है, ये मूवी है, ये देखने लायक मूवी है, यू विल गेट द आइडिया ऑफ होल थिंग, ठीक है। सो इससे ये पता लगा कि देखो, अगर आप किसी को अथॉरिटी दे देते हैं, नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर गिवन द अथॉरिटी ऑफ प्रिजनर गार्ड्स, तो अगर आप किसी को अथॉरिटी दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन पावर के वजह से वो पर्सन वाइस हो जाता, मतलब बदमाश हो जाता, ठीक है, खराब भी अपना उसको अपने तरीके से यूज करेगा वो गार्ड, ठीक है। तो ये एक बेसिकली फाइंडिंग्स हुई, मेजर फाइंडिंग, ठीक है, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे दिया हुआ भी है कि अलग अलग प्रिजनर के साथ क्या हुआ। लेस देन 36 hours into the experiment, prisoner 8612 began suffering from acute emotional disturbance and disorganized thinking and uncontrollable crying and rage, ठीक है। तो इसीलिए उसको बाहर निकालना पड़ा था, एक ऐसा प्रिजनर था जिसको बाहर निकालना पड़ा। तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, हमको फाइंडिंग एक मिनट दिखा देते हैं।
देखो, according to Zimbardo and his colleagues, the prison experiment revealed how people will readily conform to the social roles they are expected to play, especially if the roles are strongly stereotyped as those of prison guards. ठीक है? Because the guards were placed in the position of authority, they began to act in a way that they would not usually behaved in normal. Usually, ठीक है? तो कैसे सोशल yes. रोल्स को आप अपने आप अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? एंड मेनी ऑफ द गार्ड्स एक्चुअली Hmm. स्टार्टेड वेयरिंग दिस, जो तुम्हारा सन ग्लासेस होते हैं ना, एविएटर्स. Hmm. हाँ. Aviators, many of the prison guard actually started wearing aviators too. ठीक है? So this is again a very interesting article, a very interesting study which you may go through. Hmm. ठीक है? Now going further, Yes. तो ये सारे then the focus from these things went to group dynamics. ठीक है? एक interpersonal group dynamics जो होते हैं, अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, ठीक है? एंड इन ग्रुप आउट ग्रुप फीलिंग क्या होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, Hmm. तुमने ग्रुप अपना, तुम्हारा कभी कोई ग्रुप होएगा, है ना, स्कूल में या हाँ. कॉलेज में कोई ग्रुप होगा, तो ये मेरा ग्रुप अच्छा Hmm. है, उसका ग्रुप उतना अच्छा नहीं है, अपने ग्रुप के सारे लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप के लोग. ठीक है? तो ऐसा Yes, क्यों sir. होता है? दिस इज इन ग्रुप आउट ग्रुप थिंग. ठीक है? जो कि लियोन फेस्टिंगर ने समझाया, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी. ठीक है? हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे रिलीजन के लोग ज्यादा अच्छे हैं, वो रिलीजन के लोग कम अच्छे हैं, मेरे कास्ट के लोग ज्यादा अच्छे हैं, वो कास्ट के लोग कम अच्छे हैं, है ना? तो ये चीज ऑटोमेटिकली अपने कास्ट के, अपने रिलीजन के लोग, अपने ग्रुप के लोगों की अच्छाइयाँ ज्यादा दिखती है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, Groups. कास्ट के अदर ग्रुप्स Yes, के sir. लोगों की. ठीक है? तो दी एंड हाउ दीज स्टीरियोटाइप्स एंड डिफरेंट these we can say stereotypes and prejudice can be removed. ठीक है? तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी से समझ में आया कि क्या होता है एक्चुअली, एंड फिर उसको ओवरकम कैसे Hmm. करना है. ठीक है? ओवरकम एक्चुअली करने का तरीका है कि आप इंटरेक्शंस बढ़ाएं, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, यू विल लर्न के ओके ऐसा नहीं. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ स्टीरियोटाइप दैट, सपोज बहुत से लोग मूवीज में बनाए हैं ना, कि जब भी किसी को Hmm. ये दिखाना है, क्या बनाएंगे उसको, मुस्लिम्स बनाएंगे, है ना? ढोंगी बाबा दिखाना है तो क्या करेंगे, बाबा टाइप Hmm. कर, है ना? So Hmm. this has been portrayed in a society, and this is a stereotype of a society. लेकिन अब एक सपोज करो, एक टिपिकल पर्सन जो कि कभी जिसका कोई मुस्लिम फ्रेंड नहीं रहा, उसको तो यही लगेगा कि हाँ थोड़ा वायलेंट होते हैं, एंड अगर फ्रेंड रहा Hmm. करना स्टार्ट करेगा तो they will realize okay they are like everything is normal, है ना? कुछ अलग नहीं है. Hmm. वैसे अगर, ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बाबा ढोंगी बाबा हो, है ना? हाँ. तो Hmm. इन अ सिमिलर वे, हेलो, Hello. जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ कुछ आ रहा है यहाँ पे. Hmm. Okay, sir. ओके, हाँ. सो जरूरी नहीं है, राइट? तो ये सोशल Hmm. इंटरेक्शन एंड सोसाइटी के बारे में फिर ज्यादा ये होने लगा रिसर्चेस. ओके, देन लेट्स सी फर्दर. हाँ. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी found that ordinary male college students who were recruited to play role of the guards, अच्छा ये वही prisoner experiment है, ठीक है, guards, Hmm. stimulated prison became involved in their assignment, and the interaction became so violent that the study has to be terminated early. The research Hmm. demonstrated the power of social Okay. setting. Correct? Now, Hmm. social psychology quickly expanded to the study of other topics. ठीक है? जैसे डाले नटाने ने बेसिकली बाईस्टैंडर इंटरवेंशन, ठीक है, या बाईस्टैंडर इफेक्ट के बारे Hmm. में फाइंड आउट किया, विच आई टोल्ड यू अबाउट, किटी जेनोवेस. ठीक है? हाँ. किटी जेनोवेस बाईस्टैंडर इफेक्ट, इसको भी रीड करना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. ठीक है? देन Okay, then sir. aggression was the new topic which came up in social psychology. Aggression और social psychological analysis. ठीक है? मीनवाइल ये Hmm. सोशल साइकोलॉजिस्ट, ये किसने किया था? बर्कोविट्स ने किया था. ठीक है? लियोनार्ड बर्कोविट्स, एग्रेशन पे काम. ठीक है? ही गेव Okay, sir. this theory which is known as frustration aggression theory. ठीक है? why we aggress, aggression Hmm. क्यों होता है? because of frustration. ठीक है? अगर हम लोग के नीड्स को रोक दिया, हम नीड्स फुलफिलिंग बिहेवियर को रोक दिया जाए, तो अपने आप हम लोग अग्रेशन हो जाएगा.
ठीक है. agree. नाउ नेक्स्ट. Hmm. ओके. या साइकोलॉजिकल स्टडी ऑन फॉरेन पॉलिसी, ये जानिस का फॉरेन पॉलिसी डिसीजन एंड focused on group behavior, studying why intelligent people sometimes make decisions that are disastrous. ठीक है. तो ये this was something called group think. ठीक है, ये group think था. ठीक है. तो Yes. there was a psychological study victims of group think. देखो there was a psychological study named victims of group think. ठीक है, which was basically which showed that how intelligent people sometimes when they are involved in group decision making may take decisions which are not at all good and actually disastrous. ठीक है, disastrous मतलब उसका आउटकम बहुत खराब होता है. ठीक है, पुअर होता है. Hmm. तो इसको जैसे वी कैन से नोटबंदी इज वन ऑफ अ एग्जांपल ऑफ ये ग्रुप थिंग. Disaster. ठीक है, Hmm. क्योंकि इट वाज हाँ. डिजास्टरस एंड एक्चुअली ग्रुप थिंक हुआ. देखो पार्लियामेंट में टुडे देयर इज मोस्टली द पीपल ऑफ वन पार्टी, राइट. Hmm. सो व्हिच हाँ. अगर तुम साइकोलॉजिकल फिनोमिनन से इसको स्टडी करने की कोशिश करोगे एज अ साइकोलॉजिस्ट देखोगे तो क्या होगा कि you can see that today whatever the laws are passed in India are mostly is a result of groupthink, because most of Group thing. just are just actually not putting their mind into places and then discussing things. Rather, they are just supporting everything which the leader or which the some of the leaders proposes. है ना, जो भी प्रपोज Yes, कर sir. सपोर्ट Hmm. कर रहे हैं. क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो रहा आज पार्लियामेंट में, बल्कि पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग जहाँ होता है वहां पे क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए हर एक चीज का, एंड देन स्टेप्स हैज टू बी टेकन. Hmm. So today what India is going through in parliamentary decisions is nothing but groupthink. ठीक है. Now Yes, sir. Hmm. you cannot write this again. ठीक है, you can understand this but you cannot write this. Okay. Okay. Yeah. So so now you get it कि ग्रुप थिंक होता क्या है ना. तो देयर Hmm. स्पेशल वे कि ये पता करने के लिए कि आपका जो ग्रुप है वो अच्छे डिसीजंस लेंगे या नहीं लेंगे. ठीक है, तो ग्रुप थिंक का देयर आर फ्यू पॉइंट्स, 5 to 6 पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, हम एक दिखा. Hmm. ठीक है, तो ग्रुप थिंक के 5 to 6 पॉइंट्स होते हैं. ग्रुप थिंक देखो ये सिम्टम्स है. अगर ये सारी चीजें Hmm. आपके ग्रुप में दिख रही हैं तो समझ लो आपका ग्रुप कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं लेने वाला. ओके. Usually in. Okay, sir. तो ये आप देख सकते हैं, ये जो वेरी वेल माइंड का एक आर्टिकल है. ग्रुप थिंक गूगल पे टाइप करना तो वो मिल जाएगा. वेरी वेल माइंड का आर्टिकल है. Hmm. Janice. जानिस ने किया था इसमें, राइट. तो ये जानिस ने किया था सर इसमें. सर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या हुआ? स्टीरियोटाइप बेसिकली इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन तो हमको याद नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन हम तुमको ऐसे ओवरऑल बता दे रहे हैं. देखो स्टीरियोटाइप जो होता है ये क्या होता है, जैसे तुम किसी के बारे में जो ट्रेडिशनल आउटलुक रखते हो. ठीक है, Hmm. इसके बारे Yes, में sir. सोचो, जो उसका ट्रेडिशनल जो आइडिया है तुम्हारे माइंड में. ठीक है, जो कि सोसाइटी उसको वैसा समझता है, या वो उसके एट्रीब्यूट्स, जैसे गुजराती लोग को लोग क्या बोलते हैं कि बहुत माइजर होते हैं, है ना. Hmm. है ना, माइजर होते हैं मतलब बहुत कंजूस होते हैं. Hmm. है ना, व्यापारी अच्छे होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं. लेकिन दिस इज अ स्टीरियोटाइप अबाउट गुजराती पीपल. ठीक है,
So stereotype is Okay. typical thinking about a special group or few individuals. Yeah, we Okay. can say, देखो definition अगर हम बताएं, a widely held but fixed oversimplified image or idea about a particular type of person or thing. Okay, a widely held but fixed and oversimplified image of idea. Okay. Then coming back to the text. ठीक है, तो जैनिस ने ये ग्रुप थिंक के बारे में बात की, ठीक है, एंड स्टिल अदर सोशल साइकोलॉजिस्ट लाइक गॉर्डन एल्पॉट, मुजफ्फर शरीफ, ठीक है, फोकस्ड ऑन इंटर ग्रुप रिलेशन विद गोल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियली रिड्यूसिंग द ऑकरेंस ऑफ स्टीरियोटाइप, ठीक है, तो कैसे स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन कम किया जा सकता है, ठीक है, सो मुजफ्फर शरीफ, गॉर्डन एल्पॉट इस पे काफी रिसर्च किए, काम किए. Then social psychologists gave their opinion in 1954, ठीक है, that helped end the racial segregation of US public schools. Very important again. US public schools, and social psychologists still frequently serve as expert witness to these other topics. ठीक है, तो अगर तुमको ये चीज मेरे ख्याल से पता नहीं होगी कि यूएस में पहले ब्लैक्स को व्हाइट के स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था. व्हाइट के स्कूल अलग होते थे एंड ब्लैक्स के स्कूल अलग होते थे. ओके, ठीक है, एंड देन देयर वाज लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन हुआ था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया था कि नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स children are from black and white community are going to learn together in a same school. ठीक है, so this was the, Yes, sir. और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था यूएस में, this many of the social psychologists was involved. Actually they critically analyzed the case and they told the court that what will be the scenario if they don't allow, ठीक है, and why they should allow. ठीक है, there is a very good movie named थॉमस ग्रम. थॉमस ग्रम करके एक मूवी है, ठीक है, आई गेस थॉमस ग्रम सुना है क्या? No, sir. नहीं, थॉमस ग्रम, थॉमस ग्रम करके नहीं है, ऐसे कुछ है, हमको याद नहीं आ रहा. थॉमस ग्रम करके कुछ है मूवी, उसमें ये लिबरलाइजेशन का सीन दिया हुआ है, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, उसमें ये लिबरलाइजेशन का सीन दिया हुआ है जहाँ पे एक्चुअली ब्लैक स्टूडेंट्स स्कूल पे एंटर कर रहे हैं, व्हाइट स्कूल में जहाँ पे व्हाइट स्टूडेंट्स वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ये लिबरलाइजेशन का सीन दिया हुआ है. ओके, तो Yes, sir. समझ में आएगा how the thing was. Then later part of 20th century saw an expansion of social psychology into the field of attitude, where the particular emphasis was given in cognitive processes. ठीक है, तो later part मतलब 1950s के बाद 1960s 70s के आसपास जो social psychology है इसमें कॉग्निटिव फिनोमिनन पे ज्यादा फोकस होने लगा. व्हाट आर द कॉग्निटिव फिनोमिनन? जैसे एटीट्यूड फॉर्म, Intelligence. Intelligence based. नहीं इंटेलिजेंस नहीं, Yes. इंटेलिजेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है, Okay, sir. लेकिन वो सोशल साइकोलॉजी के अंदर नहीं आता है. एटीट्यूड जो आता है दैट कम्स अंडर सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, एटीट्यूड फॉर्मेशन and how actually attitude is formed, ठीक है, तो there was cognitive dissonance theory for it, ठीक है, which was given by cognitive dissonance theory was given by, याद नहीं, मैं बता रहा हूँ, dissonance
cognitive dissonance theory was proposed and by Festinger, right? Festinger, ठीक है, 1957 में फेस्टिंगर ने cognitive dissonance theory बताता है and he says that कि कैसे हम लोग किसी चीज के अराउंड अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, क्या चीज हमारा एटीट्यूड चेंज करता है. फॉर एग्जाम्पल करो कि देयर आर मेनी पीपल हु स्मोक सिगरेट्स, राइट, एंड इवन एवर टू एनी मूवीज एंड एनीवेयर, ठीक है, दे और इवन व्हेन दे बाय सिगरेट्स, सिगरेट के ऊपर देयर इज अ वार्निंग दैट स्मोकिंग causes cancer, right? So what is the reason that they are not taking the message seriously? ठीक है, what is the reason that is not that the health advisory is not changing the attitude of people who are smoking cigarettes? ठीक है, तो ये जो लॉजिक है, ठीक है, and what will make a person to actually quit cigarette and come to a healthy behavior? तो ये जो लॉजिक है, ये जो एटीट्यूड कैसे चेंज होगा, ये सब जो लॉजिक है, ये पढ़ना स्टार्ट हुआ देन सोशल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है. तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी फेस्टिंगर ने दिया था. इसने बोला जो कॉन्फ्लिक्ट होता है हम लोग का, ठीक है, हम लोग अपना एटीट्यूड या बिहेवियर तभी चेंज करेंगे जब हम लोग के ब्रेन में डिसोनेंस हो. डिसोनेंस हो मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है. ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि वेदर वी आर गोइंग टू चेंज अ थिंग, वी आर गोइंग टू मॉडिफाई अ बिहेवियर और नॉट, ठीक है. ओके सर. तो इन शॉर्ट अगर हम बोले, एक डेफिनेशन अगर हम बोले, cognitive dissonance refers to the situation involving conflict attitudes, behaviors and beliefs. This mental discomfort leading to alteration in one's attitude, belief and behavior to reduce the discomfort. ठीक है, तो ये एक डिस्कम्फर्ट होता है. डिसोनेंस मतलब क्या होता है? डिस्कम्फर्ट. अगर कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड या कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर्स आपको मिलेगा, डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा. वो आप हटा सकते हैं बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड या चेंजिंग योर बिलीफ और बिहेवियर. बहुत इजी एग्जांपल इसका हम दे देते हैं तुमको, ठीक है, आसान सा. तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, कोई है फ्रेंड जो बहुत अच्छी है, तो तुमको लगता है बहुत ट्रस्ट करते हो उस पे फ्रेंड, ठीक है. तो लेट्स से कि योर फ्रेंड्स नेम इज ए, ठीक है. तो ये है जिसपे तुम बहुत ट्रस्ट करते हो, ठीक है. तुमको अचानक से तुम्हारे फ्रेंड बी ने बोला कि अरे तुमको पता है जब तुम कल नहीं थे तुम्हारे फ्रेंड ए तुम्हारे बारे में ये बोल रही थी. या तुमको पता लगा कि तुम्हारे फ्रेंड ए ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे लिए कुछ बहुत खराब बोला है या बहुत खराब किया है, ठीक है. नाउ दिस इज टू डिफरेंट बिलीफ. फर्स्ट बिलीफ क्या है? दैट योर फ्रेंड इज वेरी गुड, है ना, and you share a very good relationship with each other, ठीक है. This is your first belief. And second belief क्या है? That only that तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको betray किया है ना, betray किया है. तो these are contrasting. इसके वजह से तुम्हारे माइंड में डिसोनेंस पैदा होगा, ठीक है. वो कैसे ऐसा कर सकती है, ठीक है. समटाइम यू विल थिंक नहीं ऐसा नहीं हो सकता, देन यू विल थिंक अरे ऐसा हुआ, वो मेरी दोस्त नहीं है, ऐसा हो सकता है ना. तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा एंड ये कॉन्फ्लिक्ट इज डिसोनेंस. ये डिसोनेंस कैसे खत्म होगा? इधर आप अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दीजिए या आप उसका क्लैरिफिकेशन सीख करके उसको खत्म हो जाए, ठीक है. तो उसके लिए आपको या तो अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा या बिलीफ चेंज करना होगा या बिहेवियर में चेंज आएगा कोई, टू रिस्टोर दैट कंफर्ट एंड बैलेंस, ठीक है. समझ में आया कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है बेसिकली? ओके. ठीक है. A theory of cognitive dissonance was given by Festinger. Okay, in 1970s and 80s, ठीक है. This is the last pair, I think so. हाँ, यहाँ तक इंडिया के पहले तक कराएंगे आज. In 1970s and 80s, social psychology became even more cognitive in orientation as social psychologists made advances in cognitive psychology which were themselves based largely on computer technology to perform the field, ठीक है, ठीक है.
तो अब क्या हुआ कि 1970s 80s ये जो टाइम था, इस टाइम में कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही थी, ठीक है। इवन दिस वाज द टाइम जब प्रोग्राम एंड फर्स्ट सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर्स आ चुके थे, ठीक है। सो द वर्ल्ड वाज चेंजिंग एट अ वेरी रैपिड पेस, ठीक है। एंड मोस्टली ऑल ऑफ द फील्ड्स, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो सोशोलॉजी हो, कुछ भी बोलो, सारे फील्ड्स कंप्यूटर के जनरेशन के बाद से कुछ फर्क पड़ा उन पे, ठीक है। तो साइकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ा? साइकोलॉजी पे फर्क पड़ा दैट पीपल try to understand about brain and different concepts of brain more like a computer, ठीक है। अगर तुम मेमोरी के मॉडल्स पढ़ोगे, मेमोरी के मॉडल्स, शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़े हो फर्स्ट यस सर, सेमेस्टर में? फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर। तो हाँ। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है ना, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इज एन आउटकम ऑफ कॉग्निटिव सॉरी दिस कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है। कंप्यूटर जनरेशन हुआ तो लोगों को ऐसा लगा, फिर उन लोग ने एनालॉगी अब लगाया, एनालॉगी लगाया एंड theory दिया on the basis of how computer works. Okay, so यस सर। similarly social psychology was also very affected, and it was seen that the approaches, the new researches included the concept of computer and processing, okay, how computer technology works. In a similar way, people were relating to how we form attitude, how we form behaviors. Okay. सोशल कॉग्निशन, सोशल कॉग्निशन क्या होता है? फ्रॉम ब्रेन्स टू कल्चर, ठीक है। ये बेसिकली ये इसका नाम है, एक यस सर। रिसर्च का नाम है, ठीक है। टाटा मैग्रो हिल की पब्लिश्ड है, बॉस्टन, ठीक है। द फोकस ऑफ दीज रिसर्चर्स इंक्लूडिंग एलिस ईगली, ठीक है। तो ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है कॉग्निटिव पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी पे, ठीक है। एलिस ईगली, ठीक है, देन सुसन फिस्क, then we have Higgins, then we have Nisbet, Ross, Shelley Taylor, and many others who worked on social cognition and understanding of how a knowledge about world develops through experience and influence of these knowledge structures on memory, information processing, and attitude and judgment, ठीक है। So this is all about the cognition basically, जहाँ पे हम कैसे हमारी नॉलेज जो कि हमारे इन्वायरमेंट हमको मिल रही है, वो हमारे नॉलेज स्ट्रक्चर्स जो हमारे ब्रेन में स्टोर हो रही है, मेमोरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, एटीट्यूड कैसे डेवलप हो रहा है, और जजमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सोशल नॉलेज का प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, मेमोरी में स्टोर कैसे हो रहा है, एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, तो ऑल रिलेटेड टू सोशल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। वो हो गया सोशल कॉग्निशन। जैसे हाउ वी मेक मीनिंग ऑफ अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जैसे आप जाते हैं, अगर सबको आप सपोज करो किसी के यहाँ गए, कोई जैसे क्रिश्चियन किया एंड सब ब्लैक पहने हुए, तो व्हाट वी विल अंडरस्टैंड कि समझ है ना। ड्रेस तो कोड है। एक है ना, तो सोशल सेटिंग जो होता है, सोशल सेटिंग को आप कैसे मीनिंग निकाल लें, जैसे सोशल कॉग्निशन का पार्ट है ये, ठीक है। ओके, then furthermore the extent to which human decision making could be flawed, okay, this is also important, could be flawed by both cognitive and motivational processes, ठीक है। then again social psychology का एक नया पार्ट आया या फिर न्यू टॉपिक्स पे काम हुआ, that is your biasness, ठीक है। there are many errors which we make while making or interpreting the environment around us, हम जब environment को अपने समझते हैं आसपास, तो उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, ठीक है। ये एरर्स को क्या बोलते हैं? एरर्स को बोलते हैं बेसिकली एरर्स एरर्स है ना, एट्रीब्यूशन एरर्स है। जैसे एक हेलो इफेक्ट हो गया, एक सेकंड होल्ड करो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो। हाँ इब्राहिम बोलो। संडे होगा इब्राहिम, ठीक है। आज एक्चुअली इंग्लिश क्लास होती है इसकी, तो इंग्लिश क्लास ऑलरेडी लंबी हो जाएगी, तो हम संडे क्लास लेंगे, ठीक है। और हमको कर दो ना, अभी हम ऑलरेडी क्लास में हैं ऑनलाइन, ठीक है। या फिर हम तुमको कॉल बैक कर लेते हैं, ठीक है। बोलो बोलो।
किसमें लीनियर इक्वेशन में? अच्छा अच्छा, अभी हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी हमने डाउनलोड किया है। अच्छा, हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आज अपलोड किया है ऐप में साइंस के, ठीक है, एक बार देख लेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो, वालेकुम अस्सलाम। Okay, so I was saying that there are different attribution errors which we make while we try to make out meaning of an environment. ठीक है, ये जो errors होते हैं basically, ये इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे हैं हेलो इफेक्ट, ठीक है, जैसे कोई अगर आदमी अच्छा कपड़ा पहना हुआ है तो वी फील दैट द पर्सन इज गुड, अगर कोई इतना वेल ड्रेस नहीं है दैट द पर्सन इज नॉट गुड, राइट? तो ये एक तरीके का एट्रीब्यूशन एरर है। तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूशन एरर्स पे रिसर्चेस हुई, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड बार्नम इफेक्ट आल्सो, जो बाद में हम बताएंगे तुमको, ठीक है, व्हिच यू कैन आल्सो ट्राई ऑन योर फेलो कॉलेज मेट्स, ठीक है। ओके, in 21st century the field of social psychology has been expanding into still other areas, तो अभी भी expand हो रहा है social psychology नए नए areas में, ठीक है। So basically क्या है, include interest of how social situation influence our health, ठीक है, social situation का health पे क्या असर पड़ता है, then role of evolutionary experiences and culture on a behavior, ठीक है, the way we have evolved and the culture we will live in, उसका हमारे बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ रहा है। द फील्ड ऑफ सोशल न्यूरोसाइंस, ठीक है, दिस इज अगेन अ न्यू पार्ट, द स्टडी ऑफ हाउ सोशल बिहेवियर बोथ इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन, हमारे सोशल बिहेवियर ब्रेन को कैसे इफेक्ट करता है और हमारा ब्रेन की एक्टिविटी सोशल बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता है, द रिलेशन बिटवीन टू, वाइस वर्सा, ठीक है। ये भी पढ़ने की नई नई कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है। Then social psychologists continue to seek ways to measure, understand social behavior, and the field continues to evolve. So this was the development or historical context of social psychology basically, ठीक है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्लास हम लोग बेसिकली इंडियन पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि इंडिया में कहाँ से सोशल साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड वेयर वी आर टुडे, ठीक है। And then we have a difference between social psychology and sociology and anthropology. तो यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स में मिलेगा, ये सब लिखा हुआ है मेरा। ओके सर, हाँ, ठीक है, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, ओके, थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।